Hello everyone, welcome you all to the sixth free session of Movement Maestro Academy of the year 2022. For today's session, we have our resource person Dr. Ajad Singh from Madhya Pradesh. Today, we are going to discuss on the topic osteoarthritis of knee. Without wasting our time, let's start the today's session. Over to you, sir. Hello friends, as the sir has informed, today we're going to discuss about the topic osteoarthritis of knee. In previous session, like fourth or fifth session, you have came to know about what is arthritis, what is osteoarthritis. So let's begin with the topic. So सबसे पहले हम लोग definition से start करते हैं. तो osteoarthritis is a condition in which there is a degenerative changes in the joint. अब degenerative changes से मेरा मतलब क्या है? There is wear and tear in the joints. अब बेसिकली जॉइंट के अंदर जो वेयर टेयर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जॉइंट का पार्ट इफेक्ट होता है दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज. एज यू कैन सी इन दिस मॉडल, this is basically the surface which got affected in the articular cartilage. We're going to discuss it in the detailed way in the further topics. So let's move forward. So basically जो knee joint है, it is one of the most important joint of our body and it is used in our day-to-day activity. So whenever there is any injury over the knee joint, our day-to-day activity is gonna affect it. So this is about the basics of osteoarthritis of knee. Let's move further. So what are the epidemiology of this knee joint? Sir, can you share the slide? Yeah, please. You can directly share. Discuss the definition that osteoarthritis is a non-inflammatory degenerative condition of joint characterized by degeneration of articular cartilage and formation of new bone, basically osteophytes. So as I said, it is one of the main joint of the lower limb, and for the routine activity it is used. Classification of osteoarthritis. The classification of osteoarthritis, we can classify it into two types. One is primary OA, another one is secondary OA. So let's move to the primary OA. The primary osteoarthritis is one of the most common arthritis, which is mainly occurs in elder people. जो 50-45 years के plus peoples होते हैं उनके अंदर primary OA सबसे ज्यादा commonly पाया जाता है. अब इसका जो reason है कि what are the reasons of primary OA is quite unknown. We can't predict what are the reason, what are the pathology behind the primary OA. Second thing, it mainly occurs due to the wear and tear changes occurring in the old age, mainly in the weight bearing joints. तो बेसिकली जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होता है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा नी जॉइंट है इट इज वन ऑफ द मेन जॉइंट ऑफ आवर बॉडी. तो हमारा बॉडी का जो पूरा वेट है वो नी जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा वेट आता है, उसके कारण काफी ज्यादा उसके अंदर वेयर एंड टेयर्स होती है, डैमेजेस होते हैं, उसके कारण प्राइमरी ओए काफी ज्यादा कॉमन है. सेकेंड टाइप ऑफ ओए इज सेकेंडरी ओए. It is basically due to the predisposing cause such as injury to the joint. जैसे किसी को कोई previous injury हो चुकी है joint के अंदर, one of the most common is ligament injury. Another one is previous infection. जैसे कि किसी किसी को bone infection हो जाता है basically joint के आसपास, तो उसके कारण भी osteoarthritis के chances काफी ज्यादा रहते हैं. Third one is rheumatoid arthritis. तो संधिवात भी कहते हैं हम लोग, जिसके अंदर बेसिकली आपको जो छोटे छोटे फिंगर्स है वहां से पेन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हमारे जो बड़े जॉइंट्स है, मेजर जॉइंट्स है, उसके अंदर भी विद टाइम पेन और साथ में डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है. दैट इज बेसिकली rheumatoid arthritis. Another one is CDS, that is congenital deformity of hips. Because of this also there is a chances of secondary arthritis. Another one is deformity. If there is some deformity over the hip joint, knee joint or over the ankle joint, it can also cause osteoarthritis. And one of the most common reason, ओबेसिटी, मोटापा वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण नी पेन और नी के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस काफी फास्टली हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म. Okay, so we have discussed about the primary OA, secondary OA. Let's move to the further. What are the epidemiology of osteoarthritis? The knee OA is most common cause of disability in adults. As I said, 45-50 years के बाद OA के chances काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए जो नी ओए है ये सबसे ज्यादा कॉमन
डिसेबिलिटी है जो कि हमारे जो एल्डर पीपल उनको इफेक्ट करती है। अनदर वन इज डिक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट सिक डेज। बहुत बार ऐसा होगा, देखा होगा आपने अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है जो 50 प्लस एज के हैं, वो दे ऑलवेज कंप्लेंट ऑफ पेन ओवर द नी जॉइंट। मैक्सिमम डेज, एक वीक के अंदर 2 या 3 दिन उनको हमेशा क्या रहता है कि उनको बैठने में तकलीफ आ रही है, मुझे खड़े होने में तकलीफ आ रही है, मुझे चलने में तकलीफ आ रही है। सो दिस इज द पॉइंट। अनदर वन इज हाईएस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ऑल अर्थराइटिस कंडीशन। अर्थराइटिस आर ऑफ मेनी टाइप्स, उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अगर किसी का कॉस्ट आता है ट्रीटमेंट में, दैट इज बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये होता किसमें है? तो मेनली जैसे हमारे इंडियन कल्चर एक बहुत ऐसा है कि हम लोग बेसिकली क्रॉस लेग सिटिंग होते हैं, आलती पालती मार के नीचे बैठना हमारी एक सभ्यता है। इसके कारण हमारे जो डीजेनेरेटिव चेंजेस हमारे जॉइंट के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इंडियंस के अंदर जो सिटिंग हैबिट है क्रॉस लेग और जो स्क्वाटिंग पोजीशन है, उसके कारण काफी ज्यादा ओए के चांसेस बढ़ जाता है। अब स्क्वाटिंग बेसिकली जो हमारे इंडियन के अंदर मैक्सिमम जो इंडियन टॉयलेट्स है वो प्रेफरेबल होता है, तो उसमें बेसिकली स्क्वाटिंग पोजीशन आती है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब नी ओए के अंदर 2 चीज होती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के 70 इयर्स है, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, आर्थराइटिस उसको भी है, लेकिन उसको कोई भी पेन नहीं होता है, तो दैट इज बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक। अब जिसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस हैं पर साथ में उसको दर्द भी आ रहा है, उसको हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक नी ओए। और सिम्प्टोमेटिक नी ओए इंडिया के अंदर 11% पर्सन ऑफ एज अबव 64 को होता है। अब ये तो हमने बात कर ली उसके डेफिनेशन, टाइप्स और एपिडेमोलॉजी। अब फर्दर वी मूव टू व्हाट आर द नी एनाटॉमी। तो नी बेसिकली जो नी जॉइंट है वो बनता किससे है? तो नी जॉइंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 बोन्स, वन इज फीमर, अनदर वन इज टिबिया एंड द लास्ट वन इज पटेला। तो फीमर बेसिकली हमारा हिप बोन होता है, और जो नीचे हमारा जो एक छोटी सी हड्डी, बड़ी मोटी सी हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं बेसिकली टिबिया, और उसके ऊपर एक कटोरी होती है जिसको हम कहते हैं पटेला। इट इज ऑल्सो नोन एज नी केप। So along with these 3 bones, knee joint is formed. अब उसके साथ एक छोटा बोन भी होता है, इसको हम कहते हैं फिबुला। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, फिबुला इज नेवर इन्वॉल्व्ड इन द नी जॉइंट। ठीक है, वो एक सपोर्टिव जॉइंट है साइड में टिबिया के साथ, बाकी उसका नी जॉइंट के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब क्योंकि ये बहुत मेजर जॉइंट है हमारे बॉडी का, तो इसको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिगामेंट सपोर्ट एंड मसल सपोर्ट। अब लिगामेंट सपोर्ट के अंदर इसके जो सबसे मेन 2 लिगामेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एसियल लिगामेंट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम posterior side of the tibia sorry, posterior side of the femur and inside of the anterior side of the tibia। मतलब कि टिबिया के आगे से स्टार्ट होता है और फीमर के पोस्टीरियर साइड में जाके इंसर्ट होता है, दैट इज योर एसियल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अनदर वन इज पीसीएल, दैट इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, व्हिच स्टार्ट from the back side of the femur and insert over the tibia. Sorry, I'm again. We start from the front side of the femur and insert over the back side of the tibia. These are the major 2 ligaments. Apart from this, there are some supportive ligament, that is lateral collateral ligament and medial collateral ligament, which support the knee joint from valgus and varus deformity, which is quite common in elder age, that is varus deformity. We'll discuss in further lecture. Apart from that, we can also see there are some pads over the tibia. These pads are known as meniscus. So there are basically 2 types of meniscus. Over the medial side, it is medial meniscus. Over the lateral side, there is lateral meniscus. It has a very important role in knee joint. We'll discuss further. अब आगे के स्लाइड में जैसा आपको दिख रहा है, देयर आर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द नी जॉइंट, एज यू कैन सी hamstring muscle which is present over the back side of the leg, basically in the thigh region, and the anterior region there is muscle known as quadriceps. Apart from that, lateral side में एक muscle होती है जिसको हम कहते हैं ITT band, which is the part of gluteus muscle, basically gluteus maximus. As you can see more clearly over this diagram, that meniscus, that a cushioning pad present over the knee joint. Let's move further. So what are the pathology? मतलब कि जो नी ओए है वो होता कब है? तो बेसिकली नी ओए के अंदर जो डीजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया नी ओए कब होगा आपको, जब आप 45-50 इयर्स की एज को क्रॉस करते हो, प्राइमरी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ओए। एंड इफ इट इज सेकेंडरी ओए, वो किसी भी एज में हो सकता है, बिकॉज देयर आर सम प्री डिस्पोज कॉजेस, एज आई मेक यू नो।
अब इसके अंदर डिजेनरेटिव कंडीशंस होती किस किस के अंदर है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जो हमारे बोन्स होते हैं उसके ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बेसिकली ये सबसे प्राइमरीली ओए के अंदर इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नी जॉइंट के अंदर जो बोन्स है बेसिकली आपका फीमर और टीबिया वो भी इफेक्ट होते हैं एंड इवन पटेला इज इफेक्टेड। सो ऑल द बोन स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इन द नी जॉइंट got affected by OA. Apart from that, between the joints there are fluid known as synovial fluid that is present in a sac-like structure known as synovial membrane. And then the knee joint is surrounded by a covering known as capsule. Any joint, if you talk about shoulder joint, if you talk about hip joint, if you talk about ankle joint, it all consists of a structure covered over the joints known as capsule. तो वो से knee joint के अराउंड भी capsules होती हैं. As I previously have made you, there are some ligament support over the knee joint because it is a main joint. तो ligament support काफी ज्यादा रहता है, तो ligament भी इसके अंदर basically effect होता है. And the muscle, definitely muscle is gonna affect. We'll discuss it. तो सबसे पहले बात करें हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो जैसे मैंने आपको बताया जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इट कवर्स बेसिकली द बोन। अब बोन में बात करें तो जो लोअर एंड ऑफ द फीमर है उसकी जो थिकनेस है, जैसे कि एंड का जो लोअर एंड जो फीमर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया, जैसे एज यू सी इन द डायग्राम, ये जो फीमर है इसका जो लोअर एंड है इट इज कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज बोथ फीमर एंड टिबिया एंड इट्स थिकनेस इज अबाउट 0.5 to 1 सेंटीमीटर। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज है क्या? तो आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ स्मूथ शाइनी एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड इट सर्व एज द फंक्शन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब जैसे मैंने बताया कि जो नी जॉइंट हमारा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट। तो क्योंकि हमारे डेली एक्टिविटी में लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड इवन मैनी ऑफ द पीपल यूज्ड टू यूज इट इन अ वेरी बैड मैनर, या मतलब कि एग्जॉस्टिंग मैनर। तो अब कोई इसको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है अगर कहीं पे भी वेयर एंड टेयर आएगा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर कुशनिंग पैड्स होती हैं। तो उससे हमारे नी जॉइंट के अंदर भी बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर कुशन पैड्स होते हैं। एंड दैट कुशन पैड्स बेसिकली दो काम करते हैं, एक हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, अनदर वन इज योर मेनिस्कस। आई विल मेक यू नो। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली प्रिवेंट आवर जॉइंट या प्रिवेंट आवर बोन फ्रॉम गेटिंग इरोडेड विद ईच अदर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नी ओए के अंदर प्राइमरी हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है दैट इज योर आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी इफेक्टेड। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब जैसे मैंने बताया कि आर्टिकुलर कार्टिलेज सबसे पहले इफेक्ट होता है, ठीक है चलिए मान ली बात मैंने। अब होता कैसे? तो बेसिकली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का ओए का जो इरोजन है वो स्टार्ट होता है हमेशा सेंट्रली, मतलब कि जो जॉइंट है उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, किसी भी बोन का जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से बेसिकली इरोजन आर्टिकुलर कार्टिलेज में स्टार्ट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो अकर्ड इन वेट बेरिंग एरियाज। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं या आप लोग ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, मेनी टाइम्स पेशेंट यूज्ड टू कंप्लेन दैट दे हैव अ पेन ओवर द मीडियल साइड ऑफ द नी। तो हमारा जो बॉडी का जो सीओजी और जो वेट बेरिंग पोजीशन होता है नी जॉइंट का वो मैक्सिमम टाइम्स मिडल साइड में ज्यादा रहता है, इसलिए नी ओए के अंदर मैक्सिमम पेशेंट को जो पेन कंप्लेंट होता है वो हमेशा होता है मिडल साइड एरिया में, बिकॉज उस एरिया में सबसे ज्यादा वेट बेरिंग हमारी बॉडी करती है। सो इफ आई से दैट मीडियल पार्ट ऑफ द फीमर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द टिबिया इज बेसिकली मोर इफेक्टेड इन नी ओए। व्हाई? बिकॉज वेट बेरिंग वहां पे ज्यादा है, तो वेट बेरिंग ज्यादा होगा तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का मिडिल साइड में इरोजन भी ज्यादा होगा। सो this we have talked about the what are the changes in articular cartilages. Let's move further. So what are the changes in bone? तो बोन के अंदर क्या होगा? अब क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बेसिकली बोन को प्रिवेंट कर रहा था इरोजन से और सारी चीजों से प्रिवेंट कर रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है। अब इरोड हो रहा है तो सारा का सारा जो बोन वाला पार्ट है वो डायरेक्ट अपने एक्सपोजर में आ गया, मतलब कि फीमर इज गेटेड एक्सपोज्ड विद द टिबिया। अब उसको अपने स्ट्रक्चर को बचाना है। अब स्ट्रक्चर को बचाने के लिए बोन क्या करता है, अपना जो स्ट्रक्चर है जो उसका एंड्स है दैट इज बेसिकली कॉन्डाइल्स, उसको काफी ज्यादा हार्ड कर देता है। तो फर्स्ट चेंजेस इज द बोन सरफेस बिकम हार्ड। सेकंड इज venous congestion is in the subchondral bone. It is the most common scenario we see in the knee OA, that many times patient used to come in the clinic and they used to say that they are having pain over the medial side. Apart from that, there are some bluish mark
आपको दिखेगा कुछ ब्लूइश ब्लू स्ट्रक्चर दिखता है नी के जॉइंट के आसपास, तो दैट इज बेसिकली the venous congestion which is getting around the knee joint. Apart from that, as I said, there are some new bone formation that is known as osteophytes. The osteophytes formed at the margin of the articular cartilage, which may get projected into the joints or into the capsule and ligaments bone of the weight bearing joint. जैसे अगर आप एक्सरे देखोगे नीओए का, में आगे हमारे पास एक्सरे की भी स्लाइड्स हैं, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो नीओए के अंदर आपको दिखेगा हमेशा कुछ शेडोज दिखती है बोन की, छोटे बोन्स के। तो वो जो छोटे बोन की आपको शेडो दिखती है एक्सरे के अंदर, दैट इज बेसिकली योर ऑस्टियोफाइट्स, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीओए। अब ये तो हमने बात करी कि चेंजेस इन द बोन क्या होंगे। अब फर्दर वी मूव टू द व्हाट आर द चेंजेस इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अंडरगो hypertrophy, मतलब there is a number there is an increase in the thickness of the synovial membrane. Apart from that, बहुत बार आपने देखा होगा जो नी ओए के पेशेंट होते हैं, उनके नी के आसपास एक लोकली स्वेलिंग होती है, दैट इज बेसिकली इडेमेटस। तो वहां पे एक स्वेलिंग, एक वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। अब इसके सिवा जैसे मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब क्योंकि मेम्ब्रेन हाइपरट्रॉफी हो रही है और साथ में उसके अंदर काफी ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो साइनोवियल का सिक्रेशन कम कर देते हैं। एंड एज वी नो, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट इज ए कार्टिलेज, और कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई की काफी ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज टेक इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड। अब क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम है, तो नरिशमेंट की लैकिंग होगी, और अगर नरिशमेंट की लैकिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो अपना फंक्शन ऑल्टर करेगा। तो जहां पे उसका वेयर एंड टेयर हो रहा था, और वेयर एंड टेयर होने के बाद उसको हीलिंग के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डबल डैमेज। एक तो नरिशमेंट भी नहीं मिल रहा है, साथ में वेयर एंड टेयर भी ज्यादा हो रहा है। तो वेयर एंड टेयर ज्यादा होते जाएगा और धीरे धीरे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो लाइफ है वो और कम होती जाएगी। वाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ nourishment because of the reduction of the synovial fluid production. ठीक है। So what are the changes in muscles? अब क्योंकि patient has a abundant pain, why is it so? Because many times there is a nerve impingement in between the bones, because knee joint है, knee joint के आसपास काफी ज्यादा नर्व सप्लाई भी रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो नर्व है वो जॉइंट के बीच में, दो बोन के बीच में कंप्रेस हो जाती है, और दो बोन के बीच में अगर वो नर्व कंप्रेस हो गई तो इट गिव्स अ ट्रेमेंडस एंड अनबेरेबल पेन। अब उस पेन के कारण पेशेंट का जो नॉर्मल एडीएल है, मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, वो पूरी तरह इफेक्ट हो जाता है। पेशेंट इज नॉट एबल टू स्टैंड, पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक, पेशेंट इज इवन नॉट एबल टू फोल्ड हिज लेग। अब इतना सारा लिमिटेड ऑफ मूवमेंट्स होगा तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया, और अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं जो हमारी मसल्स हैं जो अभी काफी अच्छा फंक्शन कर रही थी, वो धीरे धीरे अपने प्रॉपर्टी को लॉस करने लगती है। दैट इज नोन एज मसल एट्रोफी। तो धीरे धीरे मसल की जो स्ट्रेंथ है, मसल की जो पावर है वो, और जो मसल की जो नंबर ऑफ फाइबर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। इसके कारण जो हमारा नी जॉइंट है और ज्यादा वीक होता है। एंड देन विद टाइम धीरे धीरे जो हमारा रेंज पहले 110 या 100 डिग्री था वो रिड्यूस होकर 50 to 60 डिग्री हो जाता है। एंड मैनी टाइम्स आई हैव सीन पेशेंट यूज्ड टू कम टू द क्लिनिक विद अ रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री। मतलब इतना ज्यादा मसल एट्रोफी हो जाता है उस पेन के साथ कि धीरे धीरे उसकी जो मसल प्रॉपर्टी है वो अप्रॉक्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और उसका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा पेनफुल भी रहता है। ठीक है। सो दिस वन ऑफ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मसल एट्रोफी। अब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? एज आई सेड कि जो नी ओए है इट इज क्वाइट कॉमन इन people above the age of 45. Another one is obesity, motapa, as I have made you know. Females, because 45 ईयर की एज के बाद फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसके कारण जो उनका कैल्शियम स्टोरेज ओवर द बोन वो धीरे धीरे लूज कम हो जाती है। उसके कारण उनका जो बोन है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो सकता है, वीक हो सकता है। और साथ में आपने पढ़ा होगा जो मसल्स है उसको भी वर्क करने के लिए कैल्शियम की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो फीमेल के अंदर ओए के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। व्हाई? बिकॉज आई हैव मेड यू नो मसल्स बोन अगर दोनों को दोनों इफेक्ट होंगे तो कहीं ना कोई आपका जॉइंट पूरी तरह इफेक्ट होगा। प्रीवियस नी इंजरी, एज आई मेड यू नो, लोअर एक्सट्रीमिटी माल अलाइनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज सम अलाइनमेंट डिस्टर्बेंस ओवर द नी जॉइंट, ओवर द एंकल जॉइंट, ओवर द
hip joint, then it can cause your knee pain, and even in further with time it can also cause OA. As I say, in our Indian culture it's quite common habit of squatting and sitting cross-legged, पालथी मार के बैठना. अब high impact activities, अब high impact activities basically स्पोर्ट्स पर्सन बेसिकली वो काफी ज्यादा हम अपना जो लोअर लिम है वो यूज करते हैं. उसमें सबसे कॉमन एक्टिविटी में हम लोग बात करें फुटबॉल, क्रिकेट, जिसके अंदर काफी ज्यादा नी का मूवमेंट होता है, एंड इवन रनिंग. So these are the physical activities in which there's a very high impact activities over the knee joint. अब काफी ज्यादा अगर नी के ऊपर लोड आएगा, वेट बेरिंग आएगी, तो अल्टीमेटली इट विल गो वेयर एंड टेयर पोजीशन, और अगर ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा तो डेफिनेटली इट्स ए ऑस्टियोआर्थराइटिस. मसल वीकनेस, as I made you know, osteoporosis, that is weakness of the bone. अगर सीधा सिंपल में समझे कि deficiency of calcium in the bone. अब हाउ टू डायग्नोस ओवर द नी OA, बिकॉज जो नी पेन, पेशेंट विल कम टू योर क्लिनिक दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन. अब नी पेन के मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं. इट कैन बी आइदर सम रेडिएटिंग पेन ओवर फ्रॉम द हिप जॉइंट, फ्रॉम द एंकल जॉइंट, और फ्रॉम द बैक रीजन, or it can be meniscus injury, or it can be your ITT band syndrome, it can be your patellar femoral syndrome, it can be anything. So how can we be confirmed that yes, this person has been affected from the knee osteoarthritis? So there are some specific tests. First one is FBC, that is full body count. It is also known as CBC. Apart from that, ESR, that is erythrocyte sediment ratio, and the last one is rheumatoid factor. So these are the some blood tests which can be used to have a very clear picture of what are the things happening in their body or his body. Another one is arthrocentesis. Arthrocentesis basically is evacuating of fluid from the joint. अगर किसी भी जॉइंट से आप फ्लूइड को इवैक्यूएट कर रहे हो तो वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस. अब इसका क्या काम है? तो बेसिकली बहुत बार नी OA के जो पेशेंट्स होते हैं या फिर किसी भी जॉइंट के अंदर इंजरी होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे लोकल फ्लूइड हमेशा इकट्ठा होता है, और बहुत बार फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद भी फ्लूइड वापस इकट्ठा हो जाता है. तो टू बी वेरी मच कंफर्म्ड कि वेदर ये जो फ्लूइड है ये कोई इन्फेक्शन है कि जनरलाइज खाली जो बॉडी का फ्लूइड है वो इकट्ठा हो रहा है, क्या है, तो उसके लिए उसका एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है. तो उसके लिए फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है. उस फ्लूइड के एस्पिरेशन की जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस. लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि नी के आसपास फीमर का टीबी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस. अब फीमर का अगर टीबी हो गया तो उसमें भी फ्लूइड इकट्ठा रहेगा नी जॉइंट के आसपास. सो एंड इफ यू आर बीन वेरी मच क्लियर कि नहीं नी अगर में पेन है तो मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो डायग्नोसिस है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज टीबी एंड यू आर गिविंग द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो इसलिए ये जो टेक्निक है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर किसी नी जॉइंट के आसपास किसी पेशेंट को जॉइंट के आसपास फ्लूइड accumulated है, so you should be going for the arthrocentesis and just send the synovial fluid for the further detailed examination and further procedure. Apart from that, one of the most important thing जिसमें नी OA काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि whether the person is affected from OA or not, that is X-ray. तो बेसिकली X-ray दो व्यू में लिया जाता है. एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, अनदर वन इज लेटरल व्यू. अब जब भी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लिया जाता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखो कि वो जो व्यू हो आप हमेशा वेट बेरिंग में लो. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज नी OA के अंदर पेशेंट ऑलवेज कंप्लेंट ऑफ पेन व्हाइल वेट बेरिंग पोजीशन. जब वो खड़ा होता है चलता है तब बेसिकली उसको नी के अंदर ज्यादा पेन आता है. तो हम अगर एक्सरे वेट बेरिंग पोजीशन पे लेंगे तो वी कैन हैव ए वेरी क्लियर इमेजिनेशन कि कहाँ पे ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है, whether it is a medial side of the lateral side or something else. और अगर इस कंफर्मेशन में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, then you should go for the MRI. Why I'm saying MRI? Because by through MRI we can just check out whether there is some soft tissue injury. Soft tissue के अंदर काफी कॉमन इंजरी होता है meniscus injury, another one is ligament injury. अब ये तो हमने बात कर ली कि टेस्ट है कि किस तरीके से आप नी OA को इवैक्यूएट या फिर उस चीज को रूल आउट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट सम अदर क्लिनिकल सिम्टम्स कि पेशेंट जब भी हमारे पास आएगा, सो व्हाट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ही विल कंप्लेन और ड्यूरिंग द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो सबसे प्राइमरी थिंग पेशेंट आपको तभी याद करेगा जब उसको दर्द होगा, दैट इज पेन. सेकेंड इज स्वेलिंग. जैसे मैंने आपको बताया नी जॉइंट के अंदर आसपास काफी ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होता है जिसको हम कहते हैं बेसिकली स्वेलिंग. Joint stiffness, as I said,
क्योंकि उसको पेन हो रहा है तो वो जो अपना नी जॉइंट का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके कारण फिर फर्दर मसल एट्रोफी होगी, मसल वेस्टिंग होगी, फिर धीरे-धीरे रेंज उसका और घटेगा और एक समय के बाद उसका जॉइंट बिल्कुल रुक जाएगा या फिर चलेगा भी तो विद पेन चलेगा, जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टिफनेस। एंड दिस अनदर peculiar characteristics of OA, ऑल्दो ये अर्ली एज में भी किसी किसी को साउंड आने लगता है, इसको हम कहते हैं क्रेपिटस साउंड। इट इज अ साउंड विच अकर्स इन द जॉइंट। वेयरएज डिफॉर्मिटी, ये लेटर स्टेज में होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे जो नी हमारा वो बैक की तरफ पुश होते लगता है और एक हमारे बीच में एक वेयरएज डिफॉर्मिटी बेसिकली दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द फीमर एंड टीबिया ओवर द लेटरल साइड। इसके कारण बीच में एक होलो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहते हैं वेरस डिफॉर्मिटी। अब वेरस डिफॉर्मिटी से क्या होता है, तो उसके कारण हमारे जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स है वो पुल होते हैं और जो हमारे मिडल कोलेटरल लिगामेंट है वो आपके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब मिडल साइड का बिल्कुल वो आपस में लिगामेंट्स स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और जो बाहर वाले लिगामेंट्स वो आपस में स्ट्रेच हो जाएंगे। इसके कारण देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द लिगामेंट्स। अब as I said, there is a thickening of the synovial membrane and there is a fluid accumulation that is known as effusion. अब जैसे मैंने बताया था कि नी के आसपास टीबी भी हो सकती है, दैट इज इन्फेक्शन। अब पता कैसे चले कि टीबी है कि ये नॉर्मल फ्लूइड है, तो जैसे मैंने बताया था फ्लूइड को एस्पिरेट करवाते हैं, दैट इज नोन एज आर्थ्रोसेंटेसिस। तो उसके अंदर आपको जब साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन कराओगे तो पहले चीज आपको साइनोवियल फ्लूइड के अंदर दिखेगी इट इज वेरी क्लियर कलर। अगर उसका कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज हुआ है बेसिकली देयर सम इन्फेक्शन एंड इट इज अ क्लियर कलर फ्लूइड देन इट इज ए प्योर साइनोवियल फ्लूइड, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, मतलब काफी ज्यादा वो गाढ़ा होता है और उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी काउंट्स हैं वो 2000 पर मिलीमीटर क्यूब से कम मिलेगा। तब आप मान सकते हो कि हाँ that the patient fluid is normal, there is no any infection and it is just normal edema, normal swelling which has been accumulated around the joint. अब as I said एक्सरे एग्जामिनेशन करते हुए मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सबसे पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक और चीज हमें एक्सरे में दिखती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स एंड लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। अब जैसे नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहे होंगे, ये इस डायग्राम के अंदर जैसे आप देख सकते हो जो पहला ये डायग्राम है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो बोन्स हैं जैसे ऊपर फीमर, नीचे टिबिया, साइड में फिबुला। एज यू कैन सी इन द डायग्राम बेसिकली जॉइंट इज फॉर्म बाय फीमर एंड टिबिया। फिबुला का कोई भी रोल प्ले नहीं है जॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो गैप्स है जॉइंट स्पेस वो काफी हद तक क्लियर विजिबल है। अब मूव टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट और ए पार्ट में आपको देखोगे तो जो बी पार्ट वाला जो मीडियल साइड है उसके अंदर जॉइंट स्पेस थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है और एज में देखोगे तो मार्जिन में आपको कुछ न्यू बोन का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, that is basically osteophytes. Let's move to the C diagram. अब C diagram में दिखेगा तो और ज्यादा आपको बोन के शेडोज दिख रहे हैं। Let's see the medial side. दोनों कॉन्डाइल, फीमर के दोनों कॉन्डाइल के सेंटर में और टीबिया कॉन्डाइल के सेंटर में आपको एक दिख रहा होगा बोन पार्ट के शेडोज काफी ज्यादा, that is basically osteophytes. अब टीबिया के एज में देखिए मिडिल साइड में यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा शेडोज दिख रहे हैं, that is osteophytes. अब लेटरल साइड में भी आपको फीमर और टीबिया के आसपास काफी ज्यादा शेडोज दिख रहे हैं, that is osteophytes, that is newborn formation. अब डी डायग्राम देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओए के अंदर जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने लगता है तो मिडिल साइड में आपको दिखेगा कि बिल्कुल जो जॉइंट स्पेस है वो नेग्लिजिबल हो गया है और लेटरल साइड में जॉइंट स्पेस अभी भी है। इसलिए मैंने बताया था कि जो ओए वाली कंडीशन है इट मेनली कॉजेस पेन ओवर द मिडिल साइड ऑफ द कंपार्टमेंट। आप क्योंकि देख रहे हैं आपको मिडिल साइड में काफी ज्यादा जॉइंट स्पेस रिड्यूस हुए तो वेट बेरिंग काफी ज्यादा हो रही है मिडिल साइड में। अब वेट बेरिंग काफी ज्यादा हो रही है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर कहाँ होगा, जहाँ पे वेट बेरिंग ज्यादा होता है, तो मतलब मिडिल साइड में ज्यादा वेयर एंड टेयर आर्टिकुलर कार्टिलेज का होगा। अब इसी की जो स्केलिंग की जो प्रोसीजर है इसी को हम कहते हैं कैलिग्रेन लॉरेंस ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग ऐसी ग्रेडिंग है जो बेसिकली यूज किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए कि जो पेशेंट है वो कौन से ग्रेड के ओए पे है, वेदर इट इज 0 ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। मतलब बेसिकली ये जो ग्रेडिंग है वो 4 लेवल पे की जाती है। अब 0 ग्रेड मतलब क्या कि पेशेंट को नी में पेन है लेकिन जब हमने उसका एक्सरे देखा तो हमें कोई भी उसके अंदर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं दिखी। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से मेरा मतलब ये है ना उसके अंदर जॉइंट्स पे रेड्यूस है ना उसके अंदर कुछ ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं, मतलब मार्जिनल जो बोन शेडो मैंने बताया था वो भी नहीं दिख रहा। मतलब देयर इज सम अनदर रीजन ऑफ द नी पेन। सेकंड में
जैसे नरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, मतलब जो एक साइड कहीं ना कहीं जैसे बोन का जो जॉइंट स्पेस है कुछ जगह पे रिड्यूस हो रहा है, और साथ में कुछ ऑस्टियोफाइट्स भी दिख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेडिंग। सेकंड में क्या होगा, धीरे धीरे जॉइंट स्पेस और रिड्यूस होगा और ऑस्टियोफाइट्स और ज्यादा रिमार्केबल होंगे। मतलब जहां पे पहले 2 या 3 ऑस्टियोफाइट्स नए नए बोन बन रहे थे, अब यहाँ पे 10 से 12 नए नए बोन का फॉर्मेशन छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में और ज्यादा बढ़ गई है, जॉइंट स्पेस भी बढ़ गया, जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस हो गया, और साथ में जो ऑस्टियोफाइट्स उसका फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा हो गया। अब फोर्थ में बिल्कुल जैसे आपको मैं डायग्राम में बताना फोर्थ ग्रेड में, कि बिल्कुल जो स्पेस है वो रिड्यूस ही हो गया, मतलब स्पेस इज totally reduced and there is large amount of osteophyte formation in the joint. अब ये हमने सारी बात कर ली डेफिनेशन की, एपिडेमियोलॉजी, टाइप्स ऑफ ओए, व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, नी एनाटॉमी क्या क्या होता है उसके अंदर, कौन कौन से स्ट्रक्चर नी जॉइंट के अंदर इफेक्ट होते हैं। अभी तो सारे फाइंडिंग्स हो गए। अब इस कंडीशन को मैनेज कैसे करें, तो इट हैज two management. One is surgical, another one is conservative. So we'll discuss mainly of conservative management because we deal with conservative treatment. अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा था कि जैसे कि ओए का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है ओबेसिटी। अब किसी के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली नी के ऊपर काफी ज्यादा एक्सर्शन आएगा, काफी ज्यादा लोड आएगा। अब लोड ज्यादा आएगा तो वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्सन का वेट लॉस करवाएं। So we should refer it for the nutritionist for the weight loss and for the diet chart program, so that it can be helpful for the reduction of weight bearing over the joint. Second one is exercise program, which physiotherapists mainly used to do. That we used to program some exercises for the patient, because as I said मसल की वेस्टिंग हो रही है, मसल वेस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं मसल एट्रोफी होगा, तो मसल की स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है तो मसल की स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे। अब उसके दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं, अब मसल स्ट्रेंथन होगा तो कहीं ना कहीं जो कार्टिलेज है उसको नरिशमेंट मिलेगा। अब कार्टिलेज को मूवमेंट से कैसे नरिशमेंट मिलेगा, सो व्हेनेवर देयर इज अ जॉइंट मूवमेंट तो जो साइनेबल फ्लूइड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ साइनेबल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज a increase in the secretion of synovial fluid, and as I said synovial fluid is responsible for the nourishment of the articular cartilage, तो cartilage को nourishment मिलेगा, और अगर cartilage को nourishment मिलेगा तो वो जो wear and tear उसके सरफेस में हुआ था वो धीरे धीरे रिपेयर होने लग जाएगा। इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज विच प्रोवाइड बेसिकली shock absorbing things in the joint, and it also prevents further progression of OA and deformity. अब इसके सिवा बहुत बार ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि क्योंकि वेट ज्यादा है या फिर काफी ज्यादा OA सेकंड या फिर थर्ड ग्रेड के लेवल पे आ चुका है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पेशेंट को सपोर्टिव डिवाइस हम लोग दे दें वॉकिंग के लिए, दैट इज लाइक केन और वॉकर। और बहुत बार आपने देखा होगा कुछ पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर OA रहता है, तो यूज्ड टू पर्सनली प्रिफर वॉकर और केन फॉर द वॉकिंग प्रोसीजर। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देयर इज सम misalignment, so you can even use insoles, तो बेसिकली एंकल के नीचे कुछ सिलिकॉन पैड के छोटे छोटे सोल्स होती है जो बेसिकली हील बोन के पास में रखा जाता है, जिससे कि नी जॉइंट के अंदर जो वेट बेरिंग है वो रिड्यूस हो। अब नी ब्रेसेस भी होते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ ब्रेसेस, वन इज फिक्स अनदर वन इज मोबाइल, है ना, जिसको हम डायनेमिक नी ब्रेस भी कहते हैं। तो डायनेमिक नी ब्रेस भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उसको मूवमेंट काफी हेल्पफुल होता है। अब मेडिकल मैनेजमेंट में वी कैन यूज NSAIDs for reducing pain and swelling. Apart from that, there are some knee injections, that is glucocorticoids and hyaluronic acids, which can be used or inside the knee joint, which avoid further wear and tear, and it also support the articular cartilage and the synovial fluid. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने बताया कि बोन भी धीरे धीरे कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है, इट बिकम ऑस्टियोपोरेटिक, तो सम एंटी ऑस्टियोपोरेटिक ट्रीटमेंट लाइक कैल्शियम एंड विटामिन D3. Apart from that, there is a swelling and it can be inflammatory reactions also, so we can suggest antioxidants which prevent swelling like vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc. And in recent study, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें ये प्रेडिक्ट किया गया था कि intra-articular injection along with physiotherapy has a more better effect compared to TKR. I'm not supporting something else. बाकी जो recently अभी
लगा दे और साथ में उसकी फिजियोथेरेपी 1 से 1.5 महीने का अगर प्रोग्राम रन करें, तो उसके जो इफेक्ट्स है पेशेंट के नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो मच बेटर है कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें नी जॉइंट को, जो आपका नी ओए है, उस जॉइंट को इवैक्यूएट कर देते हैं बोन को और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि बेसिकली कंजर्वेटिव में हम लोग केन यूज करते हैं ओए के सपोर्ट के लिए। अब इसका क्या बेसिकली इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि केन बेसिकली आपका वेट बेरिंग नी जॉइंट के अंदर कम कर देता है, तो देयर इज अबाउट 20% डिक्रीज इन द प्रेशर ओवर द नी जॉइंट। सेकंड में द स्टिक शुड बी हेल्ड इन द सेम साइड ऑफ द अफेक्टेड नी। अब पेशेंट के अंदर बहुत बड़ा ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि जो केन है, जो वो सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है, वो पकड़े कहाँ, अफेक्टेड साइड या फिर नॉर्मल साइड। तो हमेशा जो सपोर्टिव केन है, उसको हमेशा पकड़ा जाता है अफेक्टेड साइड, जो नी आपका अफेक्टेड है उसी साइड में आपको उसको पकड़ना है। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो लेंथ ऑफ द स्टिक शुड बी अप टू द ग्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर। तो फीमर का जो ग्रेटर टोकेंटर होता है, वहां तक उसकी स्टिक की लेंथ होनी चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द एल्बो शुड बी इन द एंगल ऑफ 50 डिग्री, और 50 डिग्री के एंगल में हमारा एल्बो जॉइंट होना चाहिए। अब इस डायग्राम में आपको जैसे दिख रहा होगा पिक्चर में, इंसोल्स, तो दिस इंसोल्स बेसिकली डिक्रीज द weight bearing over the knee joint. अब दिस आर सम अनदर ट्रीटमेंट्स लाइक मोक्सा स्टिक। बहुत बार पेशेंट का ऐसा होता है कि मिडल साइड के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट होती है जहां पे उसको सब सीवियर पेन है, तो अगर ये स्टिक आती है मोक्सा स्टिक, अगर इसको आप जला के उस पॉइंट पर रख देंगे, इट इज अ वेरी ट्रेमेंडस रिजल्ट ओवर दैट लोकल पेन। एंड एज आई सेड, dynamic brace, so this is one of the bracing support for knee joint. This is one of the advanced treatment which has been quite used in the current scenario, that is PRP therapy, that is plasma rich protein therapy. So in this therapy basically patient का 10 से 15 ml ब्लड इवैक्यूएट किया जाता है और उसको फिर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डाला जाता है और उससे प्लाज्मा को, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इट हैज सम हीलिंग कैपेसिटी, लाइक हाइलुरोनिक एसिड हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स उसको हील पर्पस में यूज होता है, वो से जो पीआरपी इंजेक्शंस है, इट इज अ वेरी हीलिंग प्रोसीजर ओवर द नी जॉइंट, so it is a very good result in the knee OA. So basically orthopedician surgeon use this injection for osteoarthritis and it's give result in 21 days। 21 days के बाद ये देखा जाता है कि जो degenerative changes हैं वो आगे इतना ज्यादा एग्रेवेट नहीं हो रहे हैं। देखिए, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो चीजें घिस चुकी हैं, जो चेंजेस आ चुके हैं, उस चेंजेस को आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, पर हाँ जो फर्दर चेंजेस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉपिक ओवर हियर ओनली। इफ यू एनी हैव डाउट you can just mention in the comment section. Okay, thank you. Thank you so much, Dr. Rajat Singh. It's a very kind and informative session. So thank you, and thank you all the delegates for joining today's session. Thank you everyone. Good night.